Hi guys, welcome back to the channel of The Dissected Truth. And today we are discussing about arachnoid matter and pia matter. We have already discussed about dura matter in previous video. So let us start. So हमने पढ़ा था हमारे पास ब्रेन के आसपास तीन लेयर्स होती हैं. Those layers are known as meninges. And meninges का मतलब होता है मदर. सो लाइक मदर प्रोटेक्ट देयर चिल्ड्रन, बिल्कुल उसी तरीके से जो ये तीन मेनिंजीज की लेयर हैं ये भी ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं. सो स्टार्टिंग विद एरेक्नॉइड मैटर. देखो, ड्यूरा मैटर इज अ थिक लेयर. ड्यूरा मैटर थिक होता है. इट इज अ सेपरेट लेयर. यू कैन सेपरेट इट फ्रॉम द ब्रेन. एरेक्नॉइड मैटर थिन लेयर होता है. एंड एरेक्नॉइड मैटर लूजली कवर करता है ब्रेन को एंड स्पाइनल कॉर्ड को. ठीक है. देन जो ब्रेन के आसपास प्रेजेंट है ये क्या करता है, जो भी फिशर्स होते हैं ब्रेन में और जो भी गायरस होते हैं. तो फिशर्स क्या है? फिशर्स आर दी डिप्रेशंस. गायरस आर दी एलिवेशंस. तो एरेक्नॉइड मैटर क्या करता है? सारे डिप्रेशंस को कवर करता है या फिर सारे डिप्रेशंस को ब्रिज करता है. समझ रहे हो? तो जो भी डिप्रेशन है, मान लो ये सारे डिप्रेशन है, अब इसको ब्रिज कर लिया इसने एरेक्नॉइड मैटर. बट दो ऐसी जगह हैं जहां पे ये ब्रिज नहीं करता. दोज आर लॉन्गिट्यूडनल सेरिब्रल फिशर, जो कि सेरिब्रम को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है. तो हमने पढ़ा है ड्यूरा मैटर का एक फोल्ड है फाक्स सेरिब्राई जो इस फिशर में जाएगा. सो ऑब्वियसली एरेक्नॉइड मैटर भी उसके साथ ही जा रहा है. सो एरेक्नॉइड मैटर कैन नॉट ब्रिज दैट फिशर, द लॉन्गिट्यूडनल सेरिब्रल फिशर. So arachnoid matter also is also carried with falx cerebri into this fissure. And the other thing is the stem of lateral sulcus. Here we have this frontal lobe, we have lateral sulcus here, and this temporal lobe. So this part is stem of lateral sulcus, which is not bridged by arachnoid matter because जब ब्रेन स्कल में सीट करता है तो एक पार्ट है स्फीनोइड बोन का, लेसर विंग ऑफ स्फीनोइड, जो यहां पे ऐसे आता है, इम्पिंज करता है या उसके अंदर वहां पे कोई स्पेस नहीं छोड़ता. सो यहाँ पे एरेक्नॉइड मैटर को ब्रिज करने की कोई जगह नहीं मिलती. सो एरेक्नॉइड मैटर को भी ऐसे अंदर जाना ही पड़ता है इनटू दैट फिशर. फाइन. देन a capillary interval, the subdural space between meningeal layer and dura, meningeal layer of dura and arachnoid matter is traversed by cerebral veins. So the point is there is this space known as subdural space. So subdural space क्या है? ड्यूरा मैटर के अंदर की तरफ. So we have dura matter, arachnoid matter and pia matter ना. तो ड्यूरा मैटर ऑब्वियसली दो लेयर्स में है, the endosteal layer and the meningeal layer. So we are talking about the meningeal layer of dura matter and the arachnoid matter. So इन दोनों के बीच में जो स्पेस है that is subdural space. So subdural space में बहुत सारी veins पास करती हैं, the cerebral veins. एंड यहीं से वो फिर ऊपर venous sinuses में ड्रेन करती हैं. The space between the endosteal layer of dura matter and meningeal layer of dura matter, यहाँ पे जो space खुला होता है that is all the sinuses, the dural venous sinuses.
तो उसमें ड्रेन करती हैं ये वेन्स जाके। फाइन। Now let us talk about some processes of arachnoid in which we have to talk about arachnoid villi. So what is arachnoid villi? Look at these. So first of all, as you can see, these are the two layers of dura mater. Why? Because इन दो layers के बीच में ये venous sinuses होते हैं. So this is endosteal layer of dura mater and this is meningeal layer of dura mater. And यहाँ पे ये सारा blue space, this is the venous sinus. Now below that, this layer is the arachnoid matter and arachnoid matter के नीचे, that is this subarachnoid space. This is the web-like space as you can see. This web-like space. This is subarachnoid space. इसमें filled है CSF. इसमें flow करता है CSF, cerebrospinal fluid. So what happens is sometimes this arachnoid matter, it bulges out, it pushes the meningeal layer of dura mater and then pierce it. देखो यहाँ पे ये meningeal layer यहाँ पे discontinuous हो गई है because arachnoid matter इसको pierce करके venous sinus में lie कर रहा है and this thing here is known as arachnoid villi. Initially ये ऐसे आता है तो इसको arachnoid villi बोलते हैं. Then with time what happens is इसमें बहुत सारी branching and ये pedunculated हो जाता है, मतलब इसमें बहुत सारे lobes बनने लगते हैं and then it is known as arachnoid granulation. तो पहले ये होता है एरेक्नॉइड विल्लाए एंड लेटर ऑन बिकॉज ऑफ मल्टीपल पिडंकुलेशंस, यानी इसमें बहुत सारे लोब्स बनते हैं, सो इट बिकम्स एरेक्नॉइड ग्रैन्युलेशन. दोनों का काम एक जैसा है क्योंकि दोनों एक ही जैसे स्ट्रक्चर्स हैं. एंड क्या काम है? देखो यहां पे सीएसएफ प्रेजेंट है, सीएसएफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. यहां पर वीनस ब्लड प्रेजेंट है. सो यहां से सीएसएफ का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है ब्लड में. सीएसएफ एक फ्लूइड है जो वेंट्रिकल्स में बन रहा है एंड देन इट इज बीइंग ड्रेन्ड इनटू द वीनस साइनसेस. सो ये सीएसएफ यहां से ड्रेन होके ब्लड में चला जाता है एंड देन अगेन सीएसएफ विल बी फॉर्म्ड इन द वेंट्रिकल्स और ये साइकिल चलता ही रहेगा. गॉट इट? तो देख लो क्या लिखा है. एरेक्नॉइड विल्लाई आर finger like processes which arise from the surface of arachnoid. First they push the dura before them and eventually perforate it to project into the venous sinuses. They are covered by specialized mesothelial cells. So these are flat cells, mesothelial cells, जहां से CSF blood stream में चला जाएगा, thus leading to the absorption of CSF. And these villi and granulations are most numerous along the superior sagittal sinus. The superior sagittal sinus के along, this one is superior sagittal sinus only. यहाँ पे सबसे ज्यादा arachnoid granulations दिखाई देते हैं and in the brain specimen you can see these granulations also. So arachnoid granulations, the Pacchionian bodies, as you can see with advancing age, these villi enlarge in size and form pedunculated tufts, bunch. So these are known as arachnoid granulations and it has the same function because the structure is same. And as these granulations enlarge with age, there will be
द डिप्रेशन सीन इन द बोन, जब तुम ब्रेन को बाहर निकालोगे, बोन वाले वॉल्ट को अलग करोगे, तो बोन पे भी डिप्रेशंस दिखाई देंगे, बोन पे भी वो इम्प्रेशंस दिखाई देंगे ऑफ एरेक्नॉइड ग्रैन्युलेशंस। इज इट क्लियर टिल नाउ? कैन वी मूव फर्दर? So next up, the clinical correlation, that is meningiomas, that is the tumor arising from arachnoid villi and most commonly occur along the superior sagittal sinus because बहुत सारे arachnoid villi सुपीरियर सेजाइटल साइनस के रिलेशन में प्रेजेंट होते हैं, तो ऑब्वियसली वहीं पे कॉमनली फाउंड होगा ये वाला ट्यूमर। एंड इट इज रिटन meningiomas, a tumor of meninges, generally arising from arachnoid villi. Is it good? Can we move forward? So next up we have the other meninges, the meninx layer, pia mater. Now see, जब हम ब्रेन का स्पेसिमेन देखते हैं ना, ड्यूरा मैटर बिल्कुल डिफरेंट होता है, वो पूरा उसको अलग किया होता है। एरेक्नॉइड मैटर बहुत क्लियरली दिखाई देता है, बट पाया मैटर को हम स्पेसिमेन में नहीं देख सकते। पाया मैटर बहुत क्लोजली चिपका हुआ होता है ब्रेन के सब्सटेंस के साथ। पाया मैटर सारे फिशर्स में, सारे सल्कस में, गायरस में, सब जगह जा रहा है। समझ रहे हो? सो द पाया मैटर is also a thin layer. It is covering the brain surfaces, all the irregularities, all the fissures, all the sulcus, gyrus, everything. And all the blood vessels of brain run to it before entering the brain. तो सबसे पहले जो भी ब्लड वेसल्स आती हैं वो पाया मैटर के पास ही आती हैं, फिर अंदर जाएंगे ब्रेन के अंदर, ब्रेन के सब्सटेंस के अंदर। ठीक है, क्या हम आगे चलें? चलो, हम पढ़ेंगे प्रोसेसेस ऑफ पाया। पाया के भी प्रोसेसेस निकल रहे हैं, साथ में जा रहे हैं, ब्लड वेसल्स के साथ भी जाते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज पेरीवैस्कुलर शीथ्स अराउंड द वेसल्स एंटरिंग और लीविंग द ब्रेन। द ब्रेन सब्सटेंस मींस ब्रेन के अंदर, तो जो भी ब्लड वेसल्स ब्रेन के अंदर एंटर कर रही हैं या फिर ब्रेन से बाहर निकल रही हैं, उसको कवर करता है पाया मैटर। फाइन। एंड large blood vessels of the brain lie in the subarachnoid space. ठीक है, subarachnoid space में वेसल्स थी, अभी हमने पढ़ा था subarachnoid space में वेन्स भी थी। ठीक है, एंड स्मॉलर ब्रांचेस बिफोर एंटरिंग इनटू द ब्रेन, दे कैरी विद देम द डबल स्लीव। अब ध्यान से सुनो, जो भी ब्लड वेसल ब्रेन के अंदर जाएगी वो दो लेयर्स अपने साथ लेके जाएगी, मतलब उसकी कवरिंग में दो लेयर्स रहेंगी, पाया मैटर एज वेल एज एरेक्नॉइड मैटर। अब इसको ध्यान से सुनना। देखो, वी हैव पाया मैटर सबसे अंदर ब्रेन के बिल्कुल साथ चिपका हुआ। देन वी हैव एरेक्नॉइड मैटर। जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो यहाँ सब एरेक्नॉइड स्पेस में होती हैं, बिटवीन द पाया मैटर एंड एरेक्नॉइड मैटर, यहाँ बीच में ये वेसल है। अब इस वेसल को ब्रेन के अंदर जाना है, बिल्कुल सब्सटेंस के अंदर जाना है। सो व्हाट विल हैपन, जो ब्लड वेसल है उसके साथ साथ पहले चलेगा एरेक्नॉइड मैटर, और उसके बाद ये पाया मैटर की लेयर आएगी। मतलब क्या है, जो ब्लड वेसल है जब वो एंटर कर रही है ब्रेन में, उसके आसपास पहले सब एरेक्नॉइड मैटर है, तो उसको पहले एरेक्नॉइड मैटर कवर कर रहा है। देन जब वो अंदर जा रही है उसके बाद ये जो पाया मैटर की लेयर थी वो ऐसे
फोल्ड हो जाएगी। तो पाया मैटर बाहर की तरफ रहेगा और एरेक्नोइड मैटर अंदर की तरफ रहेगा। ब्लड वेसल के आसपास जो हम लेयर बना रहे हैं, अंदर की तरफ एरेक्नोइड मैटर है, बाहर की तरफ पाया मैटर है। देखो पाया मैटर ऐसे फोल्ड होगा, पाया मैटर नीचे है ना, पाया मैटर ऐसे फोल्ड होगा, तो पाया मैटर बाहर की तरफ है। जो ये ब्लड वेसल आई है, ये अपने साथ एरेक्नोइड मैटर लेके आई है। तुम समझ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पाया मैटर अब बाहर हो गए, जबकि पाया मैटर सबसे अंदर वाला लेयर था जब हम ब्रेन को कवर कर रहे थे। ठीक है। एंड देर इज अ स्पेस बिटवीन दीज टू लेयर्स, एंड दैट स्पेस इज नोन एज पेरीवैस्कुलर स्पेस, ऑल्सो नोन एज वर्चा रॉबिन्स स्पेस। ठीक है। Then, talking about the next process of paya matter, we have septa or folds dipping into the sulcus and fissures of brain, जो कि मैंने तुम्हें बताया ही है कि जो भी इसके सल्कस होंगे वो उसके अंदर तक जाएगा। पाया मैटर बिल्कुल अंदर तक जाएगा। तो जो भी उसके फोल्ड्स हैं या जो भी पाया मैटर जा रहा है, तो उसका प्रोसेस ही है ना। प्रोसेस मतलब एक जगह से जो निकल के कहीं जाता है। सो पाया मैटर का एक प्रोसेस निकल के सारे फिशर्स में जा रहा है। फाइन। देन वी हैव टीला कोरोइडिया ऑफ थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल। These are the folds of vascular paya. That means tela choroida is a fold of vascular paya, paya matter, along with ventricular lining the ependyma। जो एपेंडाइमा की लेयर होती है, तुम्हें पता है जो भी हमारे वेंट्रिकल्स हैं ब्रेन, वेंट्रिकल्स को लाइन करते हैं एपेंडाइमा सेल्स। तो एपेंडाइमा सेल्स के साथ ही एक पाया मैटर की लेयर आएगी, एंड उस पाया मैटर की लेयर को बोलेंगे टीला कोरोइडिया। टीला कोरोइडिया एंड द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज दैट आर प्रेजेंट, जहां से फिल्टर होके सीएसएफ बनेगा या डिफ्यूजन होगी, कैपिलरीज में से चीजें बाहर आएंगी और सीएसएफ बनाएंगी। So these two things together form choroid plexus, and choroid plexus ही cerebrospinal fluid बनाता है, ऐसा हम पढ़ते हैं। बट कोरोइड प्लेक्सस क्या है? कोरोइड प्लेक्सस एक पाया की लेयर है, पाया मैटर की, दैट इज टीला कोरोइडिया, एंड उसके साथ कुछ कैपिलरीज हैं जहां से फ्लूइड वगैरह डिफ्यूज होगा और सीएसएफ बनाएंगे। Lastly, pia matter also sheaths the cranial nerves. I'll show you. See, ये है cranial nerve, optic nerve. फर्स्ट cranial नहीं, फर्स्ट नहीं, सेकेंड cranial nerve, क्योंकि फर्स्ट होती है olfactory। सेकेंड cranial nerve, optic nerve, as you can see, जो optic nerve आई के पास जाती है, कैन यू सी, ये तीनों लेयर्स की कवरिंग को अपने साथ लेके जाती है। देख रहे हो? So we have pia matter on the inside, then arachnoid matter, then dura matter. इसमें वही सेम सीक्वेंस होता है जैसा ब्रेन में होता है, क्योंकि नर्व इज ऑल्सो एन एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन सब्सटेंस, मतलब ब्रेन में से ही नर्व निकल रही है, एक्सटेंड हो रही है। इसलिए नर्व की जो लेयर्स हैं, मेनिंजीज, वो तीनों सेम सीक्वेंस में हैं जैसे ब्रेन के ऊपर होती है। Is it fine? Can we move forward? So now we have subarachnoid space, जो कि हमने पहले भी देखी थी, जो एरेक्नोइड मैटर के नीचे होती है, यानी कि एरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर के बीच में होती है, जो कि वेब लाइक स्पेस थी। और ये वेब लाइक क्यों थी? क्योंकि इस स्पेस में कुछ ट्रैबिक्यूले प्रेजेंट है, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, and these trabeculae are passing from arachnoid to pia, giving it a spider web appearance,
एंड यहाँ पे ही पूरा CSF भरा हुआ होता है। एंड अगेन सब एरेक्नोइड स्पेस में वेसल्स भी हैं, ब्लड वेसल्स भी हैं। तो जब ब्लड वेसल्स में से ब्लड पास करता है तो ब्लड वेसल्स पल्सेट करती हैं, उसमें से ब्लड जा रहा है, ब्लड वेसल्स पल्सेट। तो उस पल्सेशन की वजह से CSF मूव करता है और फैलता है। इज इट गुड? So subarachnoid space around the brain is continuous with subarachnoid space around the spinal cord. ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का subarachnoid स्पेस पूरा कम्युनिकेशन में है। एंड ऑल्सो द subarachnoid space communicates with the ventricular system through the ventricular system। तो जो भी वेंट्रिकुलर सिस्टम है, लेटरल वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, मेनली फोर्थ वेंट्रिकल के साथ पूरा कम्युनिकेशन होता है ऑफ द subarachnoid space। Now moving forward, we have to talk about some extensions of subarachnoid space। So subarachnoid space भी extend होती है कई चीजों के साथ। किसके साथ? क्रेनियल नर्व्स के साथ। जैसे हमने अभी डायग्राम देखा था ऑप्टिक नर्व का, अगर इस ऑप्टिक नर्व में तीनों ही लेयर्स जा रही हैं, दैट मीन्स इसमें subarachnoid स्पेस भी होगा, CSF भी होगा। डज इट मेक सेंस? So that is the extension of subarachnoid space. A sleeve of subarachnoid space extend around the optic nerve to the back of eyeball, and small extensions of subarachnoid space also occur around other cranial nerves, because all the cranial nerves are arising from the brain and they will have a covering of pia matter as well as arachnoid matter. So there will be subarachnoid space also. Does it make sense? चलें आगे। So lastly, we have to talk about subarachnoid cisterns। तो ये जो cisterns हैं, ये बहुत सारे हैं, 4-5, बहुत सारे नहीं। So subarachnoid cisterns क्या होते हैं? देखो, एरेक्नॉइड मैटर है और पाया मैटर है, ठीक है, इनके बीच में सब एरेक्नॉइड स्पेस है। कई बार ऐसा होता है कि एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच में थोड़ी ज्यादा स्पेस होती है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अ स्पेस, अ बिगर स्पेस, a wider space containing CSF, and that space is known as cistern, subarachnoid cistern। So look at this diagram। देखो, ये जो आउटलाइन बनाई है यहाँ पे, ये पूरा ब्रेन का, ब्रेन स्टेम दिखाया हुआ है, मिड ब्रेन दिखाया हुआ है, एंड डायंसेफेलॉन भी दिखाया हुआ है। ठीक है, ये कॉर्पस कैलोसम है, यहाँ पे थैलेमस होगा। सो मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला, सेरिबेलम। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन। ये जो आउटलाइन बनाया है, दिस इज एरेक्नॉइड मैटर। एंड अभी मैंने बताया था पाया मैटर ब्रेन के साथ बिल्कुल चिपका हुआ है। सो ऑब्वियसली ये जो स्पेस बन रहा है, दिस स्पेस इज subarachnoid space containing CSF। नाउ लुक, देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे पाया मैटर होगा, बिल्कुल ब्रेन से चिपका हुआ होगा। तो ये जो स्पेस बना, ये है सिस्टम। सिमिलरली यहाँ पे भी बन रहा है, दिस स्पेस इज अगेन सिस्टम। सो हमारे पास कितने सिस्टम्स होते हैं, आई विल टेल यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट सेरिबेलो-मेडुलरी सिस्टम, जो कि सेरिबेलम की इंफीरियर सरफेस और मेडुला के बीच में प्रेजेंट है। तो ये जो एरेक्नॉइड मैटर है, ये ब्रिज कर रहा था इस स्पेस को, ठीक है, और यहाँ पे पूरा
CSF filled है, and this space, this cistern is known as cerebellomedullary cistern. Fine. So what about cerebellomedullary cistern? It is also known as cisterna magna. ये सबसे बड़ा cistern है out of all the types of cisterns we are going to talk about. We have 5. It is formed by arachnoid bridging the interval between medulla and inferior surface of cerebellum. ये मैंने दिखाया था. And it lies at the angle formed by cerebellum, medulla and occipital bone. So bone, medulla and cerebellum के बीच में ये present है. It is a triangular cistern in sagittal section and it communicates with the fourth ventricle through foramen of Magendie and foramen of Lashka. I'll show you. So this is a diagram showing CSF movements. As you can see, this cistern here is cerebellomedullary cistern. Can you see this is the fourth ventricle? And here, this foramen is foramen of Lashka and this foramen is foramen of Magendie. So as you can see, CSF will come out to this cistern through this foramen of Magendie as well as it can come out through foramen of Lashka. Is it fine? So CSF डायरेक्टली इसमें एंटर कर सकता है वेंट्रिकुलर द वेंट्रिकल के साथ डायरेक्टली ये कॉन्टैक्ट में है थ्रू द फोरामेन. फाइन. सो नाउ वी हैव पोंटाइन सिस्टर्न. पोंटाइन सिस्टर्न दैट इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ पॉन्स. देखो पॉन्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें आगे की तरफ एक सल्कस प्रेजेंट होता है, एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है जिसको बेसिलार सल्कस भी बोलते हैं एंड वहीं पर बेसिलार आर्टरी प्रेजेंट होती है. सो दैट स्पेस इज अगेन अ सिस्टर्न, पोंटाइन सिस्टर्न, and this cistern is continuous below with subarachnoid space of spinal cord and behind it is communicating with the cerebellomedullary system as it is a 3D structure. अब पीछे की तरफ ऐसे जा सकते हैं ना साइड से. सो यहां से CSF यहां पे भी ट्रैवल कर सकता है, जा सकता है. सो इट इज इन डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद cerebellomedullary system. ठीक है. पीछे की तरफ सेरिबेलोमेड्युलरी सिस्टम से ये कम्युनिकेट करता है एंड आगे की तरफ इंटरपिडंकुलर सिस्टम से कम्युनिकेट करता है. इंटरपिडंकुलर सिस्टम जो सेरिब्रल पिडंकल वाला एरिया है वहां पे भी एक सिस्टर्न बनेगा. आई विल टेल यू व्हाट हैपेंस इज द इंटरपिडंकुलर सिस्टर्न, also known as basal cistern, is formed by arachnoid bridging across two temporal lobes. I'll show you. देखो ये टेम्पोरल लोब है, ये टेम्पोरल लोब है. अब इसको अगर मैं ऐसे एरेक्नॉइड मैटर से ब्रिज कर दूं, सो दिस स्पेस विल बी द सिस्टर्न. सो दिस स्पेस इज नोन एज इंटरपेडंकुलर सिस्टर्न क्योंकि यहां पर सेरिब्रल पेडंकल भी प्रेजेंट होते हैं. सो दैट्स व्हाई इंटरपेडंकुलर सिस्टर्न. एंड इस पूरे स्पेस में सर्कल ऑफ विलिस प्रेजेंट होता है. यहाँ पे ब्लड वेसल्स पास करती हैं मेकिंग द सर्कल ऑफ विलिस. देन it is also continuous laterally with subarachnoid space surrounding the middle and posterior cerebral arteries क्योंकि यहाँ पे arteries हैं, and anteriorly with subarachnoid space around the anterior cerebral arteries. These arteries are included in formation of circle of Willis. ठीक है.
चले आगे. Then we have cistern of lateral sulcus or lateral fossa or Sylvian cistern. So this sulcus here is known as lateral sulcus. अब क्या हो अगर यहाँ पे एरेक्नॉइड मैटर इसको पूरा ब्रिज कर ले. So there will be this space formed which is known as lateral cistern or Sylvian cistern or cistern of lateral sulcus, and it contains middle cerebral artery क्योंकि middle cerebral artery यहीं से पास करती है and अपनी branches देती है. Fine. And lastly we have cistern of great cerebral vein or cisterna superior or cisterna ambiens. So what is cistern of great cerebral vein? It is present between the splenium of corpus callosum and superior surface of cerebellum, and this cistern here is known as cistern of great cerebral vein because great cerebral vein is present here in this cistern. इस सिस्टर्न में ग्रेट सेरिब्रल वेन प्रेजेंट होती है. इज इट गुड? See, it occupies interval between splenium of corpus callosum and superior surface of cerebellum. यही मैंने बताया अभी. और ये contain करती है great cerebral vein of Galen, and it also contains pineal gland. And this space, this cistern, is widely used as neurosurgical landmark. Lastly, pulsating of arteries within CSF help to force the CSF from cistern, and it will go to the superolateral surface of the brain, and then into the arachnoid villi, and then into the arachnoid granulation, and from there it will be absorbed in the blood directly. सो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क. देखो यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे वेन है, तो मतलब यहाँ पे वेन्स होंगी, वो वेन्स का पल्सेशन होगा, उसकी वजह से ये CSF विल बी मूविंग टू द सुपेरोलेटरल सरफेस, then to the arachnoid villi, arachnoid granulations, and then to the blood. So CSF circulation में वेन्स जो यहाँ पर वेन्स प्रेजेंट हैं सिस्टर्न्स में, वो जब पल्सेट करती हैं तो CSF के सर्कुलेशन में हेल्प करती है. इज इट गुड? इज इट क्लियर? दैट मीन्स वी आर डन with both arachnoid matter as well as pia matter. So we will meet again in another lecture with another topic. Till then, bye bye. Take care.